बीजेपी एमएलएस ने कर्नाटक के 2024 के बजट को लेकर कर्नाटक असेंबली में पुरजोर एहतजाज किया। ये एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी मेंबरान बजट की पेशकश के दौरान वॉकआउट कर गए और मौजूदा मालियाती रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कायद हज़्ब इख्तिलाफ आरा अशोक ने बजट को बोगस करार दिया और हुकूमत के मालियाती इंतजाम पर तनकीद करते हुए उसे इंतखाबी बजट करार दिया। साबिक वज़ीर आला एच.डी. कुमार स्वामी ने सिद्धरामैया की पॉलिसीज़ पर तनकीद की और बजट को रियासत के लिए तबाही का मरकज़ करार दिया। बीजेपी एमएलए सी.एन. अश्वथ नारायण ने इल्ज़ाम लगाया कि सिद्धरामैया की हुकूमत खुशामद की सियासत में मुलव्विस है। नारायण ने हुकूमत के इम्तियाजी रवैये पर तनकीद की और तकसीम और खुशामद से पाक पॉलिसीज़ पर जोर दिया। नारायण ने टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम लगाया। Karnataka is very discriminative. It only plays with the vote bank politics and it is hurting the sentiments of Hindus. Somehow they are always into divisive politics and appeasement politics. We totally condemn this budget being so discriminative, not been very considerate, it is not equal. There is no equality, there is no inclusiveness in the entire budget. We condemn the total attitude or this budget of the 24-25 of the Congress government in the state of Karnataka. Congress party has been ruling this country for a very long time. The policies or the tax devolution what was adopted by the Congress from the time of independence till now. The NDA government has increased by 10% the tax devolution or the sharing of tax, and even the recommendation or the guidelines whatever was given by the RBI governor was taken up in the right spirit by the India government, and even the tax devolution has happened as per the tax commission of the 14th and 15th finance commission. As per that recommendation only the tax devolution has happened. There has been no discrimination. Only thing the Congress have been trying to do politics, what they have not done, it has been done better by the tax devolution by the India government under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Here they are trying to play politics. It's only just politics. Their inefficiency, their incapabilities or their performance, they just want to cover up. Siddaramaiah is known having an experience of politics, a political experience and governance of more than 50 years, still is not able to perform. He is totally incapable, he is non-performant, and he just does politics. I totally condemn the entire politically motivated agenda of the Honorable CM Shri Siddaramaiah and the Congress government in the state of Karnataka. इन इल्जामात के जवाब में कांग्रेस लीडर ने अपने वादों को पूरा करने के लिए पार्टी के अज़्म और विजन पर जोर दिया। First of all, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister. This is his 15th budget, some sort of a record. Of course, in Karnataka, he is the highest presenter of the budget, 15 times. And the budget itself is a very well-balanced, progressive budget. And I would appreciate the Honorable Chief Minister because he has maintained the financial discipline in giving this budget to people of Karnataka. Well balanced, he has been able to provide every department whatever they had asked, if not completely, at least some of the major requests have been fulfilled. He has taken care of the agriculture sector, he has taken care of the irrigation sector, he has also taken care of the industry because we need to get lot of investments from outside Karnataka. So he is able to balance all the departments. So overall, I would say in one line, it is a progressive budget with a well-disciplined financial, maintaining the financial discipline. वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कर्नाटक के लोगों को बाइख्तियार बनाने के मकसद से मुख्तलिफ गारंटी स्कीम्स के निफाज पर रोशनी डालते हुए बजट का दिफा किया। कर्नाटक का 2024 का बजट 6.6% स्टेट इकोनॉमी ग्रोथ की पेशकश करता है, ताहम शदीद खुश्क साली की वजह से ज़राअत के शोबे में 1.8% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। माली साल 2023-24 के बजट साइज में खातिर खा इजाफा देखा गया है। Never a budget is boycotted.
move to boycott a budget itself is politically motivated. So they have played politics today just because they know that this budget is going to cater to each and every Kannadiga in Karnataka. So that is why they have boycotted. ये कर्नाटक के इतिहास में बजट के टाइम में हमको वॉकआउट करना पड़ा। इसका रीज़न क्या है? बुक देखे तो ये पूरा कर्नाटक के 7 कोटि के जनता को दिशा भूल करने वाला बजट है। ये 7 कोटि जनता को अन्याय करने वाला बजट है। 7 कोटि जनता को विरोध दर्शाने वाला बजट है। उसीलिए हम पार्टी की ओर से हमारे विरोधी पक्ष नायक के नेतृत्व में हमने वॉकआउट किया है। इसका यही कारण है, ये महिला विरोधी बजट है, एजुकेशन नीति विरोधी बजट है, SC/ST विरोधी बजट है। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माइनॉरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटी को ज़्यादा बजट दिया है, हिंदुओं को कम बजट दिया है। ये सिद्धरामैया केवल ऐसे ही पॉलिटिक्स करता है, बोलता है हम OBC है, हम SC/ST की परवाह है, लेकिन पूरा विरोध है। मैं बोल रहा हूँ MLA होल के जो मैं अभी 15-16 साल मेरा चल रहा है। पहले हम लोग SC/ST के समाज को लोन देते थे, उसको डायरेक्ट लोन देते थे, गंगा कल्याण देते थे 100, 200, 50, 60। अभी इस साल में हमें 24-25 के इसमें हमने दिया है 2, 3, 4, 5। अर्जी आया है 100, टारगेट है 2, अर्जी आया है 1000, टारगेट है 3। इसलिए ये रैत विरोधी बजट है, ये हमारे 7 कोटि का विरोध बजट है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो देखो संख्या पे मत जाइए। उनका जो माइनॉरिटी का जितना जो लाभ हो रहा है, अभी मैं बोलता हूँ, मैं वेटनरी मिनिस्टर था, ये हमने गो हत्या निषेध कानून किया था, उन्होंने कुछ बजट नहीं रखा है। गौशाला हमने प्रारंभ किया था, उन्होंने कोई बजट रखा नहीं है। प्राणी सहायवानी केंद्र हमने रखा था, कोई बजट किया नहीं है। प्राणी कल्याण मंडली किया था, कोई बजट रखा नहीं है, पूरा जीरो कर दिया है। इसलिए ये गौ माता का विरोधी बजट है, मुख्य प्राणी विरोधी बजट है, इसलिए हम लोग खंडन कर रहे हैं। जो स्टार्ट किया 10 पेज या 15 पेज पढ़े तो ये लोग उठ के चले गए। तो इनको बजट के बारे में क्या मालूम है? कुछ मालूम नहीं है। प्रिपेयर्ड होके पूरा ये सब पकड़ के लेकर आए हैं। तो पहले ही दे हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू बॉयकॉट एंड गो। इट वाज नॉट फॉर सम सब्जेक्ट व्हाट हैज कम दे हैव डन इट। कुछ आया उसके लिए उठ के ये नहीं किया, वॉकआउट नहीं किया। ये पूरा तैयारी से आए हैं, वो प्लेकार्ड सब पकड़ के पहले ही रेडी करके बैठे थे। अब when they are purposely doing it, they are known for it. See, Congress government 15th budget Siddaramaiah is giving. So much experienced he is, and he is giving a wonderful budget for the state and the people. इतना अच्छा बजट है, एटलीस्ट बजट बैठकर सुनना चाहिए, सुनने के बाद रिएक्शन कर सकता था। तो ये प्रिपेयर्ड है, ये एक ऑर्केस्ट्रेट ड्रामा है, जानबूझकर कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी का तो यही है ना, ये चल रहा है। कहना है कि बजट में सिवाय जो केंद्र को ब्लेम करने के अलावा कुछ है नहीं। केंद्र तो नहीं दिया ना, हम दिल्ली तक जाके हम प्रोटेस्ट करके आए हैं ना। हमारा इधर बात करने को क्या दिक्कत है हमारे को? हम दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में बैठकर प्रोटेस्ट कर आए हैं, पूरा मीडिया में आए हैं और सच है। डिड एनीबडी आंसर फॉर दैट? वही बातें इस बजट में भी है, ये नहीं, वो बात नहीं है। सी, ये चीज़ क्या है, जो चीज़ पैसा हमारा है, हम उनसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जो अपना है वो देने के लिए, वो भी गलत है क्या? कि अपना पूछ रहे हैं हम, वो तो बजट में भी बोलेंगे, जो जैसे नहीं आया तो बोलना ही पड़ता ना। अदरवाइज हाउ डू वी मेक अ बजट? 3 लाख प्लस इज द बजट दिस टाइम, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बीजेपी जानबूझकर अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, ये सब सामने रखकर राजनीति कर रहे हैं, उतना ही है, और कुछ नहीं है।